Hello students, today we are going to study 18 number chapter Sound Production of Sound, page number 118. Now let's recall. Some events are given below. Put a tick mark in, in the box if you have experienced the event. If not, put a cross in the box. Now there are some events are given and some boxes are given above the event, and you have tick in that box or cross in that box if that events you have experienced. First event is clap your hands together. If you are clapping your hands together, there are some vibrations are occur, and if vibrations are occur, there is sound is produced. जब हम क्लैपिंग करते हैं तो हमारे हैंड्स पर वाइब्रेशंस होते हैं. जब वाइब्रेशंस होते हैं तो उसमें से साउंड्स निकलता है. दैट मीन्स यू हैव एक्सपीरियंस दिस इवेंट. आफ्टर दैट प्लेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इफ यू आर प्लेइंग एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, it make sound. First it make vibrations and after that it make sound. That means here you can tick here. After that third one is burst a firecracker. If there is a firecracker you have burst, अगर आप लोगों ने फायर क्रैकर बर्स्ट किए तो उसमें से साउंड निकलती है. दैट मीन्स देर इज़ नॉट वाइब्रेशंस बट ड्यू टू एक्सप्लोजन देर इज sound is occur or sound is produced. After that fourth one is knock on a closed door. If we knock on a closed door, that means there is a vibrations occur, and due to this vibration sound is produced. Here also you can take. Fifth one is whistle using the cap of a pen. If you are using whistle of a cap of a pen, that means there is a vibrations produced, and due to this vibration sound is produced. That means here you can tick. After that sixth one is a place your palm on a mobile that is ringing. If there is a mobile is ringing, if you can use your palm on that mobile, that means some vibrations are occur in that ringing or its sound produced. That means here you can tick. After that seventh one is sung a clapper of a bell and the bell rang. If you can swung on clapper bell. अगर आप लोगों ने बेल पर बेल अगर बजाई तो उसमें से वाइब्रेशंस निकलते हैं. दैट मीन्स दैट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड इन टेम्पल. यू कैन टिक हियर. After that, 8 number one is metal utensils fell down with a clatter. If there is a metal utensils fell down in kitchen, that means that is making vibration, and this vibration making sound. You can tick here also. After that 9th number is there was a thunderclap in the sky. तो आप लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस लिया होगा जब थंडर क्लैप्स होते हैं, दैट मीन्स लाइटनिंग, तो दैट मेक साउंड. हियर यू कैन टिक. यू हैव एक्सपीरियंस दिस इवेंट. आफ्टर दैट 10 number is put your hand on a speaker which is producing sound. If you are put your hand on speaker, अगर आप लोगों ने स्पीकर पर अपना हाथ रखा तो उसमें से वाइब्रेशंस निकलते हैं. दैट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस sound. All these experience you have, all these events you have experienced. Now here all these, in this paragraph all these explained here. Now use your brain power is reduced from your syllabus. Now you have learned how sound is generated. आप लोगों ने ये पढ़ा है कि साउंड कैसे जनरेटेड होता है. हाउ इट रीच अस ऑन ट्रैवलिंग थ्रू सम मीडियम एंड इज हियर बाय अस. तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है इट मेक्स फ्रॉम वाइब्रेशंस एंड इट रिक्वायर सम मीडियम. देर इज 3 mediums: solid medium, liquid medium and gaseous, that means air.
These are three mediums. If these mediums are present, sound we can hear. If that medium is not present, we cannot hear sound properly. You have also seen that vibration of an object is necessary for generation of साउंड. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें से अगर वाइब्रेशंस निकलते हैं तो वही वाइब्रेशंस होते हैं जो साउंड जनरेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं. अगर वाइब्रेशन ही नहीं होगी तो दैट साउंड इज नॉट प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर, इफ देयर इज वन यूटेंसाइल is fell down in kitchen, if it is vibrating, if you are putting hand on that utensil, it stop their sound. that means अगर कोई यूटेंसाइल से या कोई बर्तन है वो किचन में गिरता है तो उसमें से वाइब्रेशंस निकलते हैं और वाइब्रेशन के बाद साउंड प्रोड्यूस्ड होता है. इफ़ यू आर स्टॉप दैट वाइब्रेशन, अगर हम वाइब्रेशन स्टॉप करते हैं तो अगर स्टॉप करते हैं तो वो साउंड भी स्टॉप हो जाता है. Now next you can see here there are some musical instruments shown in the picture. When the strings of musical instruments such as tanpura is plucked, the string can be seen to vibrate, but two ends of vibrating string are still. There is example given is tanpura. This is the tanpura and there is strings are in that tanpura. कुछ strings होते हैं. जब जब वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग करते हैं या वो जो स्ट्रिंग्स होते हैं तो उसको वाइब्रेटिंग करते हैं तो उसकी जो मिडल की जो स्ट्रिंग होती है तो वो हमें वाइब्रेटिंग होते हुए देखती है, लेकिन जो फर्स्ट एंड और लास्ट जो एंड होता है वो वाइब्रेटिंग हमें देखने को नहीं मिलता, वो वाइब्रेशन नहीं होता. जो बीच की जो स्ट्रिंग होती है दैट इज़ वाइब्रेटिंग. As it vibrates, string moves one side of the central position and come back to central position. जब वो string vibrating होती है तो वो central position से ही moves, मतलब उसकी string vibrating होना start होता है और वो come back होती है central position में ही. मतलब वो strings vibrating होती है one end and other end, but वो हमें देखने को नहीं मिलती. वो जो सेंट्रल पोजीशन होती है वहाँ ही हम वो देख सकते हैं. दिस मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. अब ये जो स्ट्रिंग की मोशन है और स्ट्रिंग की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली जब वाइब्रेटिंग करते हैं दैट इज़ इन पीरियड ऑफ सम इंटरवल ऑफ टाइम. उसमें एक पीरियड होता है, सेकंड होते हैं या सेकंड ही होते हैं. तो वो जब रिपीटेड होता है अगेन एंड अगेन तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. तो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक मोशन. इट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑलवेज रिमेंबर. व्हाट वी रिमेंबर. साउंड इज जनरेटेड बाय रिदम वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से जो साउंड निकलता है तो वो एक रिदमिक वाइब्रेशन में होता है, एक म्यूजिकल सिस्टम में होता है. रिदमिक वाइब्रेशन. वी कैन हियर द साउंड एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट. जब हम साउंड कोई भी सुनते हैं ऑब्जेक्ट का तो जब तक वो वाइब्रेट होता है वो ऑब्जेक्ट तब तक हम साउंड सुन सकते हैं. जब वाइब्रेशंस ख़त्म होते हैं तो साउंड भी स्टॉप हो जाता है. बट व्हेन वी टच वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विथ आवर हैंड द वाइब्रेशन स्टॉप एंड वी नो लॉन्गर हियर द साउंड. समटाइम वी कैन सी वाइब्रेशंस बट समटाइम वाइब्रेशंस आर सो माइन्यूट दैट वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आईज. जब वाइब्रेशंस स्टॉप होते हैं तो जो साउंड होता है दैट विल स्टॉप. तो कई बार ऐसे होता है जब वाइब्रेशंस होते हैं तो वो होते हैं लेकिन हमें देखने को नहीं मिलते. दैट मीन्स इट्स सो माइन्यूट, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं. वी कैन नॉट सी विथ आवर आईज. तो ऐसे भी वाइब्रेशंस होते हैं.
Now next one is try these. Make a list of musical instrument you are familiar with. Find out which part of the instrument vibrates and produce sound. तो आपको एक लिस्ट बनानी है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो आपको पता है। तो उसमें से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, वो आपको उसकी लिस्ट बनानी है। सच वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस साउंड कैन बी स्टडीड विथ हेल्प ऑफ सिंपल ऑसिलेटर। अब जो वाइब्रेशंस होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं ऑसिलेटर की हेल्प से। नो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑसिलेटर, oscillation and oscillatory motion. These three words are related to each other. Now you have here the word oscillator. There is one example is pendulum. That pendulum goes from one end to another end continuously. That means oscillatory motion or oscillation. You must have seen children playing on a swing इन अ गार्डन। आप लोगों ने छोटे बच्चों को गार्डन में स्विंग में खेलते हुए देखा होगा। ऑब्जर्व इट केयरफुली मोशन ऑफ स्विंग। जो स्विंग होता है तो उसको आप उसकी जो मोशन होती है तो उसको ऑब्जर्व करो। गो टू स्विंग एट अ रेस्ट इन अ गार्डन एंड मार्क इट्स पोजिशन ऑन ग्राउंड बिलो इट। तो आपको ये करना है, जो गार्डन में स्विंग होता है जब वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसका सेंट्रल जो पॉइंट है वहाँ पे आपको मार्क करना है। यू कैन कॉल दिस मार्क सेंट्रल पोजीशन ऑफ स्विंग। तो आप इस मार्क को सेंट्रल पोजीशन बोल सकते हैं। नाउ पुल स्विंग टू वन साइड एंड लेट इट गो। ऑब्जर्व हाउ इट स्विंग। तो जो स्विंग है आपको उसे पुल करना है। तो पुल करने के बाद वो जो जब घूमता है पेंडुलम पोजीशन में तो उसके जो मार्क है वो आपको ऑब्जर्व करने हैं। द स्विंग विल सीन टू क्रॉस द सेंट्रल पोजीशन अगेन एंड अगेन एज इट मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इट स्विंग। अब जो स्विंग है तो वो सेंट्रल पोजीशन से हमें कंटिन्यूसली मूव होते हुए देखने को मिल सकता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। दैट मीन्स जो स्विंग है तो हमें ऐसे ही सपोज हियर इज सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल पोजीशन। दैट स्विंग गोज एट ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ए पॉइंट टू बी पॉइंट कंटिन्यूसली। अ स्विंग दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ लाइक दिस इज एन ऑसिलेटर। तो इसे ही हम बोलते हैं ऑसिलेटर। This is called oscillator. When swing moves from one end to other end and return to its starting point, it's said to have completed one oscillator. अब जो swing है, here is the central position. अब ये swing इस A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है तो जो कंटिन्यूसली पोजीशन है उसे हम ऑसिलेटर बोलते हैं। बट this position go A to B, B to A and stop its central position, that is called one oscillation। और जब A से B तक जाएगा और B से A तक जाएगा तो that is one oscillation। The back and forth motion of oscillator on either side of central position is called oscillatory motion। तो इसी पोजीशन को हम बोलते हैं oscillatory motion। Now next page number 120. On that there is the oscillation of swing is given. You can see here that is the oscillatory position. This swing is here at a central position and it come at one end to another end. That means oscillation. Now there is one experiment. You can take one empty porcelain bowl और एन एम्प्टी स्टील ग्लास। तो आप एक ऐसा बाउल ले सकते हैं, एम्प्टी या ग्लास ले सकते हैं। स्ट्रेच रबर बैंड एंड फिक्स इट ऑन बाउल
और ग्लास एज शोन इन द पिक्चर। तो ऐसे पिक्चर में दिखा है वैसे आपको रबर वो बाउल पर या ग्लास पर स्ट्रेच करना है। नाउ गिव अ jerk to rubber band. Repeat this action. Apply smaller और greater force. तो ये जो रबर है तो इसको ऐसे हाथ से स्ट्रेच करना है ग्रेटर फोर्स से या स्मॉलर फोर्स से। While doing this, observe the fastest distance to which rubber band is stretched. जब हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो वो जो रबर बैंड है वो ज़्यादा स्ट्रेच होता है एंड वाइब्रेशंस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। दैट मीन्स इफ वाइब्रेशंस इज प्रोड्यूस मोर, दैट मीन्स साउंड जनरेटेड इज मोर। When a rubber band is stretched and released, it vibrates. जब हम रिलीज करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो वाइब्रेशन होता है। कंपेयर द वाइब्रेशंस विथ फिगर अलॉन्ग साइड। When the rubber is stretched from original position A come to B, it's seen to curve. That means maximum distance between original position of A and B. Here we can see here A position and here we can take B position. If we stretching this rubber band, that means this stretch from A to B on stretching rubber is called amplitude. जब ये रबर स्ट्रेच करते हैं तो ये जब ऐसी पोजीशन आती है उसकी ऊपर नीचे होता है, दैट मीन्स स्ट्रेचिंग, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसी वाइब्रेशंस को हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बोलते हैं। When a greater force is applied to rubber, it stretch further, meaning that amplitude increases. जब हम ग्रेटर फोर्स लगाते हैं रबर पर तो ये ज़्यादा स्ट्रेच होता है, दैट मीन्स इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ऑन रिलीजिंग लाउडर साउंड इज जनरेटेड। तो जब हम रबर स्ट्रेच करते हैं या रिलीज कर देते हैं आफ्टर दैट, तो दैट साउंड इज प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटी। When a smaller force is applied, the rubber stretch less. जब हम फोर्स कम लगाते हैं तो रबर भी स्ट्रेच कम होता है। देन एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो स्मॉलर एंड साउंड इज ऑल्सो सॉफ्टर। नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड। नाउ देयर इज वन एक्सपेरिमेंट, यू कैन टेक स्ट्रॉन्ग थ्रेड अबाउट हाफ मीटर लॉन्ग। एक आपको थ्रेड लेना है हाफ मीटर लॉन्ग। टाई अ स्मॉलर आयरन और वुड बॉल to it and suspend it from support as shown in figure. तो आपको ऐसे बॉल लेने हैं, you can take wooden ball also, we can take iron ball also, small balls we can take and tie that thread with that ball. ऐसे एक सपोर्ट भी हमें रखना है। सच एन ऑसिलेटर इज कॉल्ड पेंडुलम। तो ये जो बॉल है तो हम ऐसे घुमाते हैं तो ये कम फ्रॉम दिस इज द सेंट्रल पोजीशन, दैट मीन्स ए। दिस सेंट्रल पोजीशन व्हेन वी अप्लाई फोर्स, दैट मीन्स दिस फोर्स गोज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए एंड ए टू सी। दैट मीन्स दैट दिस इज कॉल्ड oscillator or oscillator is called pendulum. Give an oscillatory motion to the pendulum. The maximum distance between original position A of the pendulum and extreme position B or C is called amplitude of oscillation. अब जो A है that means central position or original position, and from B to C that means amplitude of that pendulum or amplitude of that oscillation. In figure AB or AC is amplitude of oscillation. अब A और B और A to C that means oscillation of that pendulum. Now do you know a stretched rubber return to its original state when it is released? This property is called इलास्टिसिटी। अब जो रबर है जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो कुछ समय के बाद ओरिजिनल स्टेट में आता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी।
Second one is when a stretched rubber band vibrate, elasticity is at work. जो रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, इट वर्क. थर्ड वन इज ऑल द वाइल दैट पेंडुलम ऑसिलेट्स अर्थ ग्रेविटेशन इज एट वर्क. अब जो पेंडुलम है तो पेंडुलम ऑसिलेशन प्रॉपर्टी है पेंडुलम की, तो वो ऑसिलेशन होता है. तो वैसी ही प्रॉपर्टी है अर्थ की. अर्थ इज इन सर्कुलर फॉर्म. दैट मीन्स दैट अर्थ इज continuously goes in circular motion, that is the periodic motion. It comes like oscillation motion. तो यही जो प्रॉपर्टी है तो इसी वजह से ग्रेविटेशन काम करता है.